अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum dear students. Mathematics Grade 3 Punjab Curriculum and Textbook Board Lahore. Dear students, as you know, we have started chapter 1 whole numbers and we have completed Roman numbers, even and odd numbers, place values, and today we will learn about how to represent numbers on number line. In the previous lesson, we have learned about place value up to 5 digits. You will find the place value of the numbers up till 5 digits, and we did exercise 3 in the previous lesson, how to write the numbers in words, how to write the numerals, and we have completed the filling the blanks, match the correct answer, write the values of the digits, and we have find the values of the encircled digits. We have learnt about the place value from ones, tens, hundreds, thousands and 10,000s. And I have assigned you a task to do the practice of this exercise 3. Hope so you have did this. Our today's topic is number line. In today's lesson we will learn about number line. What is a number line? आज के लेसन में हम सीखेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है, इसमें हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we will read the text. Place the given numbers on a number line. For example, 7, 9, 3, 4, 0, 1, 10. These are the numbers and we have to represent these numbers on a number line. Now see what is a number line. A straight line on which numbers are represented at equal intervals is called number line. A straight line on which numbers are represented at equal intervals is called number line. Number line एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम नंबर्स को शो करते हैं इक्वल इंटरवल्स के साथ, यानी उसमें जो स्पेस होती है वो बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड होती है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी दिस. I'm going to draw a number line. This is my number line. You have to draw it with scale. This line can go right side or left side. Starting from this point, this is our starting point 0. Equal interval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. We can represent the numbers infinitely, but we will see from where our numbers exist. यानी हम देखेंगे कि हमारे नंबर्स कहाँ तक हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी नंबर्स लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे. A straight line on which numbers are represented at equal intervals is called number line. Now we have to represent these numbers on a number line. So first of all we will draw a number line. Both ends showing this line can go left side and this line can go right side. Starting from the 0 till 12, it's up to us. फर्स्ट ऑफ ऑल 0, वेर इज 0, दिस इज 0, तो हम उसके ऊपर 0 को रिप्रेजेंट कर देंगे.
अब हम देखेंगे 7 कहाँ पे, ये 7 है, 9 कहाँ पे, ये 9 है, तो उसके ऊपर आपने बॉक्स बना के उसको हाईलाइट कर देना है। अब यहाँ भी हम शो करते हैं नंबर्स को, वेयर इज 7 दिस, ठीक है, तो हम यहाँ पर 7 को शो कर देंगे। 9 कहाँ पे है, यहाँ पे, हम यहाँ पे 9 को शो कर देंगे, ठीक है। 3 कहाँ पे है, यहाँ पर, we will show here. Where is 4? This is 4. Where is 0? This is 0. Where is 1? This is 1. And where is 10? हमने यहाँ पर 10 नहीं लिखा था, पर यहाँ पे हमें 10 की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर 10 को लिखकर यहाँ पे शो कर देंगे। ये इसमें जो डिस्टेंस है ना, ये इक्वल होना चाहिए। लाइक आप ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये जो इंटरवल है ना, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इक्वल ही होना चाहिए। अगर आपने लाइक 1 सेंटीमीटर रखा है तो 1 सेंटीमीटर ही आगे होना चाहिए, ठीक है। आगे आपने 2 सेंटीमीटर नहीं कर देना, सेम डिस्टेंस पे आपने इसको लेकर चलना है। इज इट क्लियर? नाउ सी, रिप्रेजेंट 15 ऑन द नंबर लाइन, यानी अब आपने 15 को नंबर लाइन पर शो करना है। एज यू कैन सी, first of all we will draw number line, we will write the numbers and we will show where is 15. 15 कहाँ पर है, ये है, तो आपने इसको ऐसे हाईलाइट कर देना, या आप बॉक्स बना सकते हैं, या आप उसको हाईलाइट कर दें, सर्कल बना दें, या आपने नंबर लाइन पर 15 को शो कर दिया। यानी डेली लाइफ में आप नंबर लाइन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स की पोजीशन को शो करना चाह रहे हैं तो आप उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई आप गेम है उसमें आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रिप्रेजेंट 9, 11, 12 ऑन द नंबर लाइन, यानी अब आपने रिप्रेजेंट करना है 9 को, 11 को और 12 को नंबर लाइन पर, ठीक है। तो ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, जहाँ पर 9 है उस बॉक्स को आपने फिल कर देना है, जहाँ पर 11 है उस बॉक्स को फिल कर देना है, जहाँ पर 12 है उस बॉक्स को आपने फिल कर देना है। यानी ये नंबर्स हमने नंबर लाइन पर शो कर दिए कि ये नंबर यहाँ पर हैं, ठीक है। जस्ट आपने नंबर लाइन पर नंबर्स को शो करना होता है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विद स्केल एंड यू हैव टू शो एरोज ऑन बोथ साइड्स एंड देन यू हैव टू राइट द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। नाउ वी विल सी रिप्रेजेंट 6, 18, 22, 28 ऑन द नंबर लाइन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 के डिफरेंस से, हम यहाँ पे 2 के डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 का टेबल ले रहे हैं, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ठीक है। हमने यहाँ पर 30 तक ले लिया, हम चाहे तो 28 तक भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 30 तक ले लिया। अब आपने ये नंबर्स इधर शो कर देने हैं। आप चाहे तो इसको सर्कल कर दें, चाहे तो आप इसको बॉक्स बना दें, इसको हाईलाइट कर दें कलर्स के साथ, डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हुए। 6, 18, 22 एंड 28 ये नंबर्स हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, शो कर दिए हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी अब हमने उसने वहाँ पर नंबर लाइन पे नंबर्स को मार्क कर दिया। अब आपने बताना है कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब आपने नंबर लाइन पे वो नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर्स कौन से हैं, वो नंबर्स क्या हैं। आइडेंटिफाई द मार्क्ड नंबर्स गिवन ऑन द नंबर लाइन। जो मार्क्ड नंबर्स हैं आपने वो बताने हैं। अब ये मार्क्ड नंबर क्या है, 3, ये मार्क्ड नंबर क्या है, 18। अब नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नंबर विच इज़ बिटवीन 7 एंड 9। अब 7 और 9 के दरमियान में कौन सा नंबर आ रहा है, 8, तो आपने बता दिया 8। आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द गिवन नंबर लाइन। आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द गिवन नंबर लाइन, यानी आपने इस गिवन नंबर लाइन में जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं, ठीक है, अब आपने बताना है वो किस नंबर पे गिवन है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल किस नंबर पे है, 10, गुड। डक, that is on 30 and this car is on 60, well done. You have to identify the values of objects on the given number line. This activity is very easy. Now see next activity. As you can see,
Identify the position of each child on the number line. Identify the position of each child on the number line. 1 unit is equal to 1 meter. यानी अब आपने ये पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है नंबर लाइन पर, ठीक है। आपने नंबर लाइन पर पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है। लाइक दिस चाइल्ड इज ऑन, ये एक इंटरवल शो करा 1 मीटर को, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5। ये किस पे है? 1 पोजीशन पे। ये किस पोजीशन पे जा रहा है? 4th पोजीशन पे। दिस चाइल्ड इज ऑन 2nd पोजीशन, दिस चाइल्ड इज ऑन 0 पोजीशन एंड दिस चाइल्ड इज ऑन 3। वेल डन। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 4। अब आपको क्लियर है कि नंबर लाइन क्या होती है? एक नंबर लाइन स्ट्रेट लाइन होती है जिसके ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने अब इन नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करना है। Question number 1. Exercise 4. Question 1. First part 9 4. 9 4. हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने 9 और 4 को आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ पर है। ये है तो आप इसको यहाँ पर मार्क कर दें। 9 कहाँ पर है? ये आप इसको इंसर्कल कर दें, या आप इस तरह बॉक्स बनाकर भी उसमें लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ कैन यू राइट द नंबर्स। सेकंड है हमारे पास 5 15 25। 5 15 एंड 25। 5 15 25। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर्स जो है बड़े बड़े आ रहे हैं। 5 को शो करना, 15 को 25। अब हम अपने नंबर लाइन को 0 से 1 2 3 नहीं कर सकते, बहुत सारे हमें यहाँ पे नंबर लिखने पड़ेंगे। तो हम एक इजी वे यूज़ करते हैं। अब इनमें डिफरेंस है, 5 के बाद 15 आ रहा है, ठीक है, इसके बाद 25 आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, हम 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। हम 5 का डबल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम शो कर देते हैं 0 5 10 15 20 25 30। हम एक उससे ज़्यादा नंबर ले लेते हैं। जो नंबर गिवन हम उससे एक नंबर ज़्यादा ले लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे हमारे पास 5 कहाँ पर है। ये है 5, तो इसको हम मार्क कर देंगे। 15 कहाँ पे? ये 15, और ये हमारे पास 25। 5 15 25 आप उसको इंसर्कल कर दें, ठीक है, या आप उसके ऊपर बॉक्स की फॉर्म में उसको शो कर दें। अब हम थर्ड वाला पार्ट करेंगे। उसमें हमें शो करना है 6 12 24 36। 6 12 24 36। थर्ड पार्ट में हमने शो करना है 6 12 24 36। अब आपने इन नंबर्स को शो करना है कि ये नंबर्स कहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देख लें, 6 के बाद 12 24 36। अब 6 स्टार्ट में, तो आप यहाँ पे 6 का डबल ले लें, सिंपल। 6 का डबल तो सब बच्चों को आता है ना, ठीक है। 0 6 12 18 18 के बाद क्या आएगा? 24 24 के बाद 30 और फिर 36 36 के बाद क्या आएगा? 42। अब ये नंबर्स आपने यहाँ पे शो कर देने, 6 12 24 36। इज इट क्लियर? पहले आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, फिर आपने उसके ऊपर उन नंबर्स को शो कर दिया। अब आपने ऐसे नहीं करना कि एक नंबर लाइन ड्रॉ की और आपने यहाँ 6 12 24, ये रॉन्ग वे है। आपने पहले एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए नंबर्स लिखने हैं, फिर उसके ऊपर नंबर्स को आपने रिप्रेजेंट कर देना। अब नंबर्स बिग थे तो हमने अपना डिफरेंस भी बिग ले लिया, 6 6 का ले लिया। फोर्थ पार्ट देखें, 4 12 20 28।
4, 12, 20, 28। अब आपने ये नंबर्स नंबर लाइन पर शो करने हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास 0, अब 4 स्टार्ट में, तो 4 का डिफरेंस ले लेते हैं। 4 का टेबल, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, देन 20, 24, 28 एंड 32। अब ये 4 आ गया हमारे पास, ये 12 आ गया, 20 और 28, 4, 12, 20, 28। इस तरह आपने नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देना है। अब नंबर्स बिग थे तो हम यहाँ पे 0 से लेकर 28 तक तो नहीं काउंटिंग लिख सकते, क्योंकि हमारी नंबर लाइन फिनिश हो जाएगी। इसलिए हमने एक इजी वे फाइंड किया कि हम डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, यानी हम 4 का डिफरेंस ले लेते हैं, 4 का टेबल यूज कर लेते हैं। अब इसी तरह 5th पार्ट देखें, 0, 15, 30 एंड 60। अब यहाँ पर देखें 15 आ रहा है, तो हम 15 का डिफरेंस ले लेते हैं, 15 का टेबल ले लेते हैं। 15, 30, 45, 45 के बाद 15 का डिफरेंस लें तो हमारे पास क्या आएगा, 60, 60 के बाद 15 का डिफरेंस 75। ये हमने 15 का टेबल ले लिया। अब 0 किधर आ रहा है हमारे पास, दिस इज 0, दिस इज 15, दिस इज 30 एंड दिस इज 60। ये हमने नंबर लाइन पे नंबर्स को शो कर दिया। लास्ट वन है 3, 6, 9, 12, 15। ये 3 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो ये तो 3 का टेबल सिंपल आ रहा है, तो हम 3 का डिफरेंस ले लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ की, राइट और लेफ्ट पे एरोस शो किए, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, फिर नंबर्स को लिखा, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। 3, 6, 9, 12, 15। ये हमने नंबर लाइन पर नंबर्स को शो कर दिया। इज इट क्लियर? सिंपल है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर लाइन ड्रॉ की, उसके बाद आपने नंबर्स को देखा, जज किया कि हमारे पास नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपने नंबर लाइन को नंबर्स लिख कर रिप्रेजेंट कर देना है कि अगर 6 का डिफरेंस से आ रहे हैं तो 6 का टेबल ले लें, 4 के डिफरेंस से आ रहे हैं तो 4 का डिफरेंस ले लें, 15 है तो 15 का ले लें, 20 है तो 20 का टेबल ले लें। अब बिग नंबर्स हैं तो आप इतने ज़्यादा नंबर्स तो नंबर लाइन पर इट इज़ इम्पॉसिबल टू राइट the numbers on the number line starting from the difference with the 1. So we will use a easy trick, that is you have to use the difference of the table. यानी आप देखेंगे उसमें कितना फ़र्क आ रहा है डिजिट्स का, तो वो आप इजीली लिख के उसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। In this way we have completed this question 1. Now see question 2. Question 2. First of all, we will read the question. What is question? Write the values of objects on the given number line. Write the values of objects on the given number line. Write the values. Values लिखनी है आपने इन objects की जो कि नंबर लाइन पर आपको given है। यानी अब ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एक नंबर लाइन पे, ठीक है, आपने बताना उसकी वैल्यू क्या है, वो किस नंबर पे होगा, यानी हमने इसका स्केल देखना है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस लाइन, दिस नंबर लाइन। आप पहले देखें 0 के बाद क्या है 5, 5 का डिफरेंस आ रहा है, इट मीन्स कि 5 के बाद क्या आएगा 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10। नेक्स्ट देखेंगे एप्पल, 15 के बाद और 25 इन दोनों के दरमियान में क्या आएगा, 5 का डिफरेंस लेना है। 15 के बाद क्या आता है 5 का टेबल पढ़ें, 5 1 टाइम, 5 5 2 टाइम्स 10, 5 3 टाइम 15, 5 4 टाइम 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सेकेंड वन, अब देखें ये ऑब्जेक्ट दिस एंड दिस, ये हमारे पास चिप्स है। अब आप देखें 0 के बाद 10, तो 10 के बाद क्या आएगा 20, 20 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी 30, इसकी वैल्यू क्या होगी 30। 40, 40 के बाद क्या आएगा 50, गुड। 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, वेल डन।
नहीं, आपने इसके बारे में सोचा और आपको पता चला कि 10 का डिफरेंस है, तो हम 10 का टेबल ले लेंगे, सिंपल। अब थर्ड वन देखें, ठीक है। अब 4 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, ट्रक, शॉर्पनर, व्हाट इज दिस थिंग, इज इट अ बॉक्स एंड दिस इज डाइस। ओके, अब आप देखें 0 के बाद 2 4, तो 2 का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली 2 4 के बाद क्या आएगा 6, 8 के बाद क्या आएगा 10, 12 के बाद क्या आएगा 14, 14 के बाद यहाँ पे 16, वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने जस्ट ऑब्जेक्ट्स का कहा है। 16 के बाद क्या आएगा 18, लिख भी सकते हैं आप अगर आप लिखना चाहें तो। इस तरह आपने इस क्वेश्चन 2 को कंप्लीट कर लेना है। जस्ट आपने देखना है कि इसमें स्केल क्या लिया गया है और जो ऑब्जेक्ट्स गिवन है उसकी आपने जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। अब क्वेश्चन 3 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेस द करेक्ट नंबर कार्ड ऑन द नंबर लाइन। प्लेस द करेक्ट नंबर कार्ड ऑन द नंबर लाइन, यानी प्लेस द करेक्ट नंबर कार्ड ऑन द नंबर लाइन। आपके पास ये नंबर कार्ड्स गिवन है, ठीक है। आपने इनको उठाना है और उनकी करेक्ट पोजीशन प्लेस पर पुट कर देना है कि 6 कहाँ आएगा, 9, 18, 21। अब देखिए 0 के बाद 3 है, तो 3 का डिफरेंस है, 3 का टेबल पढ़ ले सिंपल। 3 के बाद क्या आएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6। 6 के बाद क्या आएगा ये 9, यहाँ पे आ जाएगा। अब 12 गिवन है, 15 गिवन है, 15 के बाद क्या आता है 18, और 18 के बाद 21, 18 के बाद 21 और 21 के बाद 24 ऑलरेडी गिवन है, यानी आपने 3 का टेबल रीड कर लेना है और उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। नेक्स्ट 0, 100, then 300, 400, then box, 600 box and 800, 200, 500, 700। अब आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। वो आपको पता है कि 100 का टेबल है, 100 का डिफरेंस, 100 के बाद क्या आता है सिंपल 200, 200 के बाद 300 गिवन है, 400 गिवन है, देन 500, देन 600 गिवन है और इधर 700। इज इट क्लियर? यानी जस्ट आपने जो आपके पास नंबर कार्ड्स दिए हुए हैं आपने उनको उठाना है और उनकी करेक्ट पोजीशन पर आपने उसको प्लेस कर देना है नंबर लाइन पर। प्लेस द करेक्ट नंबर कार्ड ऑन द नंबर लाइन। इज इट क्लियर? वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन 3 in which we have placed the correct number card on the number line. In question 1 we have represented the numbers, following numbers on the number line, यानी हमने ये numbers जो हैं नंबर लाइन ड्रॉ करके वहाँ पर शो किए। इसके बाद हमने क्वेश्चन 2 पे हमें ऑब्जेक्ट्स गिवन थे, हमने उनकी वैल्यूज़ बताई कि वो किस नंबर पे पड़े हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने नंबर कार्ड को जो है उनकी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस किया। In today's lesson we have learnt about what is a number line. Number line is a straight line in which we show numbers. यानी एक ऐसी लाइन जिसमें हम अपने नंबर्स को शो करते हैं उसको हम कहते हैं नंबर लाइन। You have to read this definition carefully. A straight line on which numbers are represented at equal intervals is called number line. यानी आप नंबर्स को इक्वली डिवाइड करके शो करते हैं उसको कहते हैं नंबर लाइन, उसको कहते हैं नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा, उनकी वैल्यूज़ को सीखा, ऑब्जेक्ट्स गिवन थे हमने देखा कि उसकी वो किस वैल्यू पर गिवन है, और इसके बाद हमने करेक्ट पोजीशन पे नंबर को रिप्रेजेंट किया। And we did this short activity of child who are running on a track. इन्होंने एक गेम में पार्टिसिपेट किया हुआ है, वो भाग रहे हैं और हमने उनकी पोजीशन बताई कि कौन स्टूडेंट, कौन सा चाइल्ड किस पोजीशन पे है। Hope so you have understood this topic. Now your turn. You will do the practice of number line and you will do these activities. That is on page 22, 23, 24 and 25 as well, and you will do the practice of exercise 4 that is on page 25 and 26. Also do the practice of previous concept we have learned starting from the recording 1,
we have learnt about the Roman numbers, and we have learnt about how to read and write the Roman numbers. Then we did even and odd numbers. What are even and odd numbers? Then place value up to 5 digits. In today's lesson we have learnt about number line. So dear students, must do the practice of these concepts and do the practice of these exercise on your notebooks. If you have any confusion, then you can ask. Till then, take care and Allah Hafiz.